students. How are you? I hope you are all good. This is your science classes and we discussed chapter number 17, Forest, Our Lifeline. In my previous video, we discussed the importance of forest. As we know that there are so many importance of the forest. First of all, forest gives us useful product and also maintain the balance between oxygen and carbon dioxide, and forest maintain the water cycle, and also so many importance are the forest. So student, today we are going to discuss the flow of energy in food chain. First of all, we can see that the energy source and then producers, primary consumer, secondary consumer and tertiary consumer. Here we can see that the producer are involved, the grass, primary consumer, insects, secondary consumers, frog, and tertiary consumer is eagle. And the last one is the decomposer. Here this is not mentioned in that food chain because it only eat the dead body and the dead plant. These are called decomposers. Decomposers. First of all, we can see that the grass and what is the 10% rule of energy. In that rule, if here the 20,000 kilocalorie energy is contained in this producer, that are grass, and if any insects or any other insects eat the grass, then only 10% energy is consumed by this insects. And what is the 10% energy of the 20,000 kilocalorie? That is 2,000 kilocalorie energy. Okay. Similarly, here we can see that 2,000 kilocalorie, it contains only 200 kilocalorie energy, and here 20 kilocalorie energy, and the last one, eagle, only consume 2% kilocalorie energy. This is called the food chain, and here we can see that the flow chart of the producer, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer and decomposer. Okay students, take a screenshot of this topic. And now, next topic. Next topic is dynamic living entity. Dynamic living entity by harboring greater variety of plants, the forest provides great opportunities
food and habitat for the herbivores. Full stop. Larger number of herbivores means increased availability of food for a variety of carnivores. The wide variety of animals help in maintaining helps the forest to regenerate and grow. Decomposers helps in maintaining the supply of nutrient to the growing plants in the forest. Growing plants in the forest. Therefore, the forest is a dynamic living entity. This is a continuous interaction between
water, air, plants and animals in the forest. Animals in the forest. What is the dynamic living entity? This is the most important topic, and here we can see that by harboring greater variety of plants, the forest provides great opportunities of food and habitat for the herbivores. Means forest basically क्या है, इसमें इतने नंबर्स ऑफ वैरायटी ऑफ प्लांट्स ऑब्टेन होते हैं. ये सिर्फ फूड की, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड की ही अपॉर्चुनिटीज नहीं देता है, बल्कि क्या करता है वो साथ ही साथ जितने भी हमारे एनिमल्स हैं उनको वो हैबिटेट मीन्स शेल्टर भी प्रोवाइड कराता है. लार्जर नंबर ऑफ हर्बीवोर्स मीन्स इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर अ वैरायटी ऑफ कार्निवोर्स. मीन्स जितना ज्यादा नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ अगर हर्बीवोर्स प्रेजेंट है तो जो हमारे कार्निवोर्स हैं, जितने भी हमारे कार्निवोर्स हैं उनके लिए जो फूड है, फूड में क्या हो सकता है, बेसिकली उनको वैरायटीज ऑफ फूड ऑब्टेन हो जाते हैं. क्यों? अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ हर्बीवोर यानी जो भी प्लांट्स होंगे, जो भी हर्बीवोर्स होंगे, प्लांट्स मैक्सिमम होंगे, तो उन प्लांट को ईट करने के लिए जो हमारे हर्बीवोर्स है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ होंगे. अब जो हमारा फूड चेन है, हमने वहां पे देखा है कि जितने भी एनिमल्स हैं वो बेसिकली क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. So the wide variety of animals helps the forest to regenerate and grow. Means जितना number of variety of animals हमारे फॉरेस्ट में ऑब्टेन्ड होंगे, उतना ही ज्यादा हमारा जो फॉरेस्ट है वो रीजनरेट और ग्रो करेगा. Decomposers helps in maintaining the supply of nutrients to the growing plants in the forest. Means decomposers जो है ये आफ्टर द टर्शरी कंज्यूमर के बाद आते हैं. बेसिकली डीकम्पोजर्स का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है. ये क्या करते हैं, जो हमारे डेड प्लांट और डेड एनिमल होते हैं वो उनको डीकम्पोज करते हैं. डीकम्पोज करने के बाद जो ये यहाँ से आफ्टर दैट डीकम्पोज करने के बाद वहां से जो न्यूट्रिएंट मिलता है वो सॉइल में एब्जॉर्ब होता है और वो हमारे प्लांट्स को ग्रो करने में बहुत ही हेल्प करते हैं. Therefore, the forest is a dynamic living entity. इसलिए जो हमारा फॉरेस्ट है ये क्या कहलाता है, एक डायनेमिक लिविंग एंटाइटी है. और ये जो सर्कल है ये डेली चलता रहता है. अगर हम इसमें से किसी भी एक को डिस्टर्ब करेंगे तो हमारे एनवायरमेंट का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा. नाउ दिस इज द कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन soil, water, air, plants and the animals in the forest. अभी हमने जो बताया है this is the continuous interaction between. ये जो प्रोसेस है ये continuous interaction means ये क्या है, सेल्फ continuous interaction होता है. ये सेल्फ होता है, खुद से होता रहता है. और ये इंटरेक्शन बिटवीन किसके बीच का है, soil, water, air, plants and एनिमल्स इन दी फॉरेस्ट. मीन्स हमारे फॉरेस्ट में जो भी हमारे जितने भी कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल जो हमारे सॉइल है, वाटर है, एयर है, प्लांट्स है, इनके बीच में ये सारा प्रोसेस चलता रहता है जिससे हम जो फॉरेस्ट है वो डायनेमिक लिविंग एंटाइटी कहलाता है. ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टॉपिक. Now, next topic is forest conservation. Forest conservation.
the ways to conserve forests are given below. First point, excessive cutting down of forest trees should not be allowed by the government to conserve forests. Second point, more trees should be planted in the forest in place of cut down trees to conserve forests. Third point, paper products such as old newspapers, magazines, books, notebooks, etc. should be recycled to conserve forests. So फॉरेस्ट कंजर्वेशन मीन्स हम लोग फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, फॉरेस्ट को कैसे कौन कौन से वो वेज हैं, कौन कौन से वो तरीके हैं जिसकी वजह से हम लोग फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। क्यों? अभी हम लोगों ने
फॉरेस्ट के डिफरेंट इंपॉर्टेंस देखे हैं कि फॉरेस्ट हमें कहाँ कहाँ हेल्प करते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट हमें देते हैं, वाटर साइकिल को मेंटेन करते हैं, और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में बैलेंस मेंटेन करते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज एक्सेसिव कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज शुड नॉट बी अलाउड बाय द गवर्नमेंट टू कंजर्व फॉरेस्ट. मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जितने भी हमारे फॉरेस्ट हैं वो धीरे धीरे कट किए जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से इंडस्ट्रियों में ग्रोथ हो रहा है, और अगर इंडस्ट्री ग्रोथ करनी है तो उसके लिए लैंड चाहिए. तो ये लैंड हमें कहाँ से मिल रहे हैं? लैंड हम लोग उसको, जो जितने भी हमारे फॉरेस्ट है उसको हम लोग कट करते हुए उसको लैंड में क्रिएट करते जा रहे हैं. तो जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, कुछ स्टेप लिए गए हैं बेसिकली, जिसकी वजह से क्या किया जा रहा है, हमारे फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा रहा है. ओके, डिफरेंट एक्ट हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा पहले से ही लिए गए हैं, और ये हमें हेल्प करते हैं फॉरेस्ट को कंजर्व करने में. सेकेंड पॉइंट, more trees should be planted in the forest in place of cut down trees to conserve forest. और बेसिकली हम लोग जितने भी ओल्ड ट्रीज हैं, अगर वो किसी वजह से हमारे जो स्टॉर्म है और बेसिकली जो हमारे नेचुरल फेनोमेनन होते हैं, जैसे अगर अर्थक्वेक आता है, कुछ भी आता है, तो जो हमारे ट्रीज है, या ऐसे भी हम लोग जो ट्रीज को काटते हैं, जो ट्री ओल्ड हो जाते हैं उसको कट करते हैं, तो आफ्टर दैट इन प्लेस ऑफ दैट ट्रीज हम लोगों को वहां पे न्यू ट्रीज को प्लांट करना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर हम लोग वहां पे नए ट्रीज को प्लांट करेंगे तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं. नाउ थर्ड पॉइंट इज पेपर प्रोडक्ट्स सच एज ओल्ड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स, नोटबुक्स etc. should be recycled to the conserved forest. और we know that the paper products are making by the trees. Okay? तो जितने भी पेपर प्रोडक्ट्स हैं, ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, किताबें, नोटबुक जो भी हैं, उसको बेसिकली हम लोगों को क्या करना चाहिए, डे बाय डे रिसाइकल करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको फेंक दें और उसका यूज ना करें. तो बेसिकली हम लोग उसको रिसाइकल करना चाहिए. उससे क्या होगा, हम लोग अपने फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं. Okay, student, take a screenshot of this topic. So students, I hope this topic is clear to all of you. In my next video, the another topic will be discussed. Okay, thank you and have a nice day.